નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગત લેક્ચરની અંદર હિન્દીના પહેલા પીરિયડની અંદર વિષય પ્રવેશ તરીકે 7મા ધોરણની અંદર આપણે પહેલા ક્વાર્ટરની અંદર અથવા તો પહેલા સત્રની અંદર આપણે શું શું ભણવાનું છે, હિન્દી વિષય શું છે, હિન્દી ભાષા શું છે, એના વિશે આપણે ગત લેક્ચરની અંદર મિત્રો માહિતી મેળવી. તો આજથી આપણે વિધિવત રીતે આપણા પાઠ્યપુસ્તક અંતર્ગત જો આપણું પહેલું ચેપ્ટર છે चित्र के संग संग, उसकी हम आज से पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं. तो दोस्तों, ये जो पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ है. क्या है? चित्र पाठ. तो चित्र पाठ क्या होता है दोस्तों? चित्र के आधार पर जो किसी भी प्रकार का कोई चित्र है, चित्र में किसी वस्तु है, स्थान है, कोई पदार्थ है, कोई जगह है, या तो कोई स्थल या तो स्थान हो, उसका हमें अवलोकन करना पड़ता है, या तो हम उसे देखते हैं, उसे देखकर अवलोकन करके हम अपने जो विचार है उसका विकास कर पाते हैं. तो यहां पर जो चित्र के संग संग એટલે કે ચિત્રની સાથે સાથે કે મિત્રો આપણે ચિત્રને અવલોકન કરતા જઈએ, ચિત્રને જોતા જઈએ અને ચિત્ર જોતા જોતા એની અંદરથી આપણે એક એક વસ્તુની માહિતી છે, એક એક વસ્તુની જાણકારી છે આપણે પ્રાપ્ત કરતા જઈએ અને એમ આપણા જ્ઞાનની અંદર, આપણા શબ્દ ભંડોળની અંદર આપણે વધારો કરતા જઈએ. કે જેવી રીતે તમે મિત્રો 6થા ધોરણની અંદર આપણે જ્યારે ભણવાની શરૂઆત કરી ત્યારે પહેલા સત્રની અંદર હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દયાલુ શિકારી નામનું જે આપણે ચિત્રપાઠ ભણ્યા હતા, તમને યાદ હશે કે જેની અંદર આપણે જોયું હતું કે પુસ્તકની અંદર આપણને ઘણા બધા ચિત્રો આપવામાં આવ્યા હતા, જેના નંબર આપ્યા હતા કે 1 2 3 4 5 6 એમ કરીને એને એક એક ચોરસ બોક્સની અંદર એ જુદા જુદા ચિત્રો છે એને નંબર પ્રમાણે આપ્યા હતા અને એની અંદર એક પછી એક ચિત્રો એ અલગ અલગ સ્વરૂપે એ મૂકવામાં આવ્યા છે અને એ ચિત્રોને આધારે આપણે એક હરણ અને શિકારીની સરસ મજાની વાર્તા આપણે ભણી ચૂક્યા છે. એ જ રીતે ત્યાર પછીના આગળ આપણે પેલા હંસ અને કાચબાની વાર્તા પણ આપણે ચિત્રાત્મક રીતે ભણી ચૂક્યા છે. બુદ્ધિમાન કૌવા એ પણ ચિત્રના આધારે આપણે 6થા ધોરણમાં વાર્તા શીખી આવ્યા છે. તો મિત્રો એવી જ રીતે આપણે 7મા ધોરણની અંદર આ કોઈ વાર્તા નથી, પણ વાર્તાની જેમ જ ચિત્રની સાથે સાથે ચિત્રને જોતા જોતા આપણે આપણી જે મનની જે વૈચારિક શક્તિ છે અથવા તો આપણને જોવાનું જે સૂક્ષ્મ અવલોકન છે એને કહીએ છીએ, એ અવલોકન શક્તિને આપણે ખીલવવાની છે, અવલોકન શક્તિને આપણે મજબૂત બનાવવાની છે. આપણે આપણા વિચારોને વધારે મજબૂત બનાવવા છે. એટલા માટે આપણે ચિત્રને જોતા જોતા ચિત્રની સાથે સાથે આપણે ચિત્ર જોતા જઈએ અને એ ચિત્રને આધારે આપણે ધીમે ધીમે એ ચિત્રને જોઈ એમાંથી નવી નવી માહિતી છે આપણે પ્રાપ્ત કરતા જઈએ. તો દોસ્તો, આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જોઈએ આપણે કે ભાઈ ચિત્ર કે સંગ સંગ, જેમ આપણે સમજ્યા કે ભાઈ ચિત્રપાઠ, ચિત્રપાઠ એટલે ચિત્રના આધારે આપણે જે માહિતી મેળવીએ છીએ, જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ તે ચિત્રપાઠ છે. જેને અંગ્રેજીમાં આપણે પિક્ચર કહીએ. પિક્ચર એટલે કે ચિત્ર, એટલે કે ચિત્ર જોતા જોતા આપણે જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી. તો હવે મિત્રો, તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્રની અંદરનું જે દ્રશ્ય છે તમે એને ધ્યાનથી એકદમ સૂક્ષ્મ રીતે એને જોવાનો પ્રયાસ કરો.
જોવો જો કે ચિત્રની અંદર એક સાયકલની દુકાનનો માણસ પોતાની દુકાનની બહાર એ સાયકલના ટાયરની અંદર પંપથી હવા ભરી રહ્યો છે ને ત્યાર પછી એની બાજુમાં એક ગુબ્બારે यानी कि फुग्गा वाळो पोते પોતાની લાકડી ઉપર ઘણા બધા ફુગ્ગા છે એને બાંધેલા છે એ ફુગ્ગા વેચવા માટે રસ્તામાંથી ધીમે ધીમે પસાર થતો હોય એવું લાગે છે એવી જ રીતે ત્યાર પછી એની પાછળ જો એક બીજું ચિત્ર છે કે જેની અંદર सब्जी बेचने वाली एक स्त्री जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कुंजड़ी। तो देखिए एक कुंजड़ी है ये शब्दार्थ हम लिख लेते हैं कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली। तो ये एक कुंजड़ी है कि जिन्होंने अपने सिर पर एक टोकरी रखी हुई है टोकरी में हम कई सारी सब्जियां हमें दिखाई पड़ती उसके पीछे एक डंडा है वही डंडे के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। फिर सड़क के किनारे पर आप देखते हैं एक मोची बैठा हुआ है और अपने तो बैठकर एक अपने ग्राहक की जो प्रतीक्षा कर रहा हो ऐसा हमें दिखाई देता है। फिर उसके एकदम पास एक कुत्ता लेटा हुआ है यानी कि आराम कर रहा है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं आगे हमें एक बाइक वाला व्यक्ति दिखाई देता है उनके पीछे एक रिक्शा वाला जा रहा है। फिर उनके पीछे दो कार जा रही है। फिर उसके सामने आगे कई मकान है यानी कि कई घर हमें दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जो ये चित्र है ये चित्र में हमने पूरे का पूरा देखा या तो समझा और इसी चित्र का ये अवलोकन करके हमें चित्र के आधार पर देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको कई प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला सवाल है पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है क्या पूछा गया है पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो दोस्तों हमें चित्र देखकर उनका अवलोकन करके जो हमने पहले बात की यहाँ पर इसी प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। तो हम कह सकते हैं पहले चित्र में हमें एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके बाद एक गुब्बारे वाला गुब्बारे यानी कि फुग्गा गुब्बारे वाला यानी कि फुग्गा वाला फुग्गा बेचने वाला एक मानस अपने देखा है यानी कि गुब्बारे वाला अपने एक डंडे पर कई गुब्बारे रखकर वो आगे उसे बेचने के लिए जा रहा है। उसके पीछे एक कुंजड़ी जो अपनी सब्जी बेचने के लिए जा रही है। सड़क के किनारे पर एक मोची ग्राहक भी
इंतजार यानी कि ग्राहक की प्रतीक्षा करता हुआ बैठा हुआ है। पास में एक कुत्ता लेट रहा है। सड़क पर कोई वाहन है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार जा रहे हैं। सामने कुछ मकान है, चित्र में देखे पर यहाँ पर ये सब बात लिख सकते हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया है बोल रही है कि साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है, कुत्ता सो रहा है, लेट रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा है, कुजरे सब्जी बेचने जा रही है। ऐसी क्रियाएं ऐसा हम कह सकते हैं। फिर आगे गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, दूसरा सवाल यहाँ पर इस प्रकार के गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें गैस यानी कि हवा भरी हुई है। क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है इसलिए वह उड़ रहे हैं। फिर तीसरा सवाल है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो हम कह सकते हैं ट्यूब में हवा जब निकल जाती है या तो बिल्कुल नहीं होती तब उसमें हवा भरी जाती, और क्योंकि तब वह ठीक से चल सके, यानी कि ट्यूब में हवा बिल्कुल ना हो या तो कम हो तब भरी जाती। इसी प्रकार मित्रों एकदम બધા પ્રશ્નો સરસ। આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है, कि भाई चित्रनी અંદર જે કૂતરો છે પોતે શા માટે સૂઈ રહ્યો છે, આરામ કરી રહ્યો, તો આપણે કહી શકીએ कि भाई चित्र में कुत्ता इसलिए लेट गया है क्योंकि उसे आराम करना है। फिर पांचवा प्रश्न है, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है, कुंजड़ी यानी कि शाकभाजी बेचवा वाली क्या क्या जा सके है, तो हम कह सकते कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली सब्जी बेचने के लिए गांव, शहर, मोहल्ले ये सभी जगह पर जा सकती। उसके बाद रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई रिक्शे में एक ही यात्री इसलिए बैठेगी क्योंकि उनको शायद दूसरी सवारी या तो दूसरे यात्री नहीं मिले होंगे। तो इसी प्रकार के शब्द के सब सवाल हम सरलता से आसानी के साथ लिख सकते हैं। और इसी प्रकार ये जो पहला चित्र है उसमें कौन कौन सी क्रिया है और कई हमारे मन के जो थोड़े ये सवाल है काल्पनिक दृष्टि से हम उसे जान पाए, इसी प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जो हम सरलता से उसे यहाँ बता सकते हैं। फिर पीछे देखते हैं उसकी तरह ही एक दूसरा चित्र यहाँ पर हमारी किताब में पेज नंबर 2 पर दिया गया है। तो दूसरा चित्र कैसा है, देखिए कि एक ही चित्र, पहला जो चित्र है वही चित्र है पर उस चित्र में एक घटना घटित हो गई है। चित्र पहला है, वही स्थान है, फिर उसमें केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ पर एक घटना घटित हुई है। तो ये कौन सी घटना घटित हुई है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र देखकर हम मूल्यांकन यानी कि हम अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पर सभी चीज अस्त व्यस्त हो गई है, इधर उधर बिखर गई है, ऐसा हमें जान पड़ता है। देखिए जो साइकिल वाला है वह जमीन पर गिर गया है, उसके बाद
गुब्बारे वाले हैं उनके लकड़ी में जो गुब्बारे थे वहां से ये निकलकर छूटकर हवा में उड़ रहे हैं। उनके पीछे जो गुजरी है सब्जी वाली है, उनकी जो सब्जी की टोकरी है वो जमीन पर नीचे गिर गई है और उनकी सारी की सारी सब्जियां जमीन पर इधर उधर बिखर गई है। जो मौसी है वो भी यहाँ से झिझक कर घबरा कर यहाँ से भागने के प्रयास में वह जमीन पर गिर गया है। उसके बाद में जो पास छूटा हुआ जो कुत्ता है जो यहाँ पर लेटा था वो भी डर के कारण घबराहट के कारण भागता जा रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता। फिर इसके आगे जो डंडे पर जो तोता बैठा हुआ है वो भी डर के मारे यहाँ से उठकर भागने का प्रयास करता हुआ हमें दिखाई देता है। और रास्ते पर यानी कि सड़क पर चलने वाली जो बाइक वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, उनके पीछे एक रिक्शा वाला है जो बाइक वाला के साथ रिक्शा वाला टकरा गया है, ऐसा हमें यह चित्र में देखने को मिलता है। तो ये जो घटना घटित हुई ये हम पहले चित्र और दूसरे चित्र में कौन सा अंतर है या तो कौन सा तफावत है, ये तफावत हम ये दूसरा चित्र का निरीक्षण करके दोस्तों हम बता सकते हैं। तो हम दूसरे चित्र में जो हमने बात यहाँ पर सुनी, इसी प्रकार इस चित्र के नीचे कुछ प्रश्न के जवाब यहाँ पर हमें पूछे गए। जो ये सवाल या तो ये प्रश्न के जवाब हमें यहाँ पर दिए गए, इस प्रश्न के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं और यहाँ पर उसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चित्र का जो प्रश्न के जवाब है उसे हम समझकर के लिखने का तो प्रयास करते हैं और उसके साथ साथ आपको भी प्रश्नों का जो जवाब है वो एकदम सरल है। तो देखिए पहला सवाल, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो आप बता सकते हैं, जो हमने पहले यहाँ पर चित्र में इसका वर्णन किया। तो क्या कहते हैं टायर फटने पर क्या क्या हुआ? सवाल आपकी किताब में, उसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं टायर फटने पर जो साइकिल में पंप से टायर फटने वाला जो आदमी है वह धमाके के कारण वह जमीन पर गिर गया। दूसरी बात कि भाई गुब्बारे वाला घबरा कर उसके हाथ की जो लकड़ी है उसमें से गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। सब्जी वाली जो कुंजड़ी है वह कुंजड़ी के सिर पर जो सब्जी की टोकरी है वो भी जमीन पर नीचे गिर पड़ी है। और इनके साथ साथ जो मौसी है वो भी घबरा कर यहाँ पर गिर गया है। उनके जो औजार है मौसी के वो औजार भी सड़क पर बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। कुत्ता भी डर कर यानी कि घबरा कर यहाँ से भाग रहा है। तो ये सभी क्रियाएं हमें उत्तर एक के अंदर हमें लिखना है। और उसके बाद का जो प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर से तो टायर थी बीजी ये कई वस्तुओं હોય કે જે ફાટી શકે। तो मित्रों આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ टायर के अलावा फटने वाली चीजों का नाम तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, प्रेशर कुकर, यानी कि जिसमें हवा भरी जाती है वह सभी से फूट सकती है या तो टूट सकती है। इसी प्रकार हम इसका भी जवाब दे सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो हम कह सकते हैं कि भाई रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकराया क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से यानी कि बाइक वाला गलत ढंग से बाइक चला रहा था। उसके बाद का सवाल है
टायर फटने का प्रभाव इंजन पर नहीं पड़ा। तो टायर फटा, जो घटना घटित हुई उसका प्रभाव ऐसी स्थान पर कौन कौन सी चीज वस्तुएं थी जिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो टायर फटने के आवाज में ऐसी मकान, एक रिक्शा है, पसी रिक्शा के पीछे जो कार है और उसके साथ साथ जो मकान दिखाई देता है, इन सभी वस्तु पर यानी कि इन सभी चीजें पर टायर फटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और बाद का सवाल है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची रास्ते पर क्यों आ गया? तो हम कह सकते हैं कि मोची टायर फटने के आवाज से घबराकर रास्ते पर आ गया, यानी कि रास्ते पर चला गया, आ गया। तो इसी प्रकार जो पहली घटना या तो पहला चित्र है उसके विपरीत जो दूसरा चित्र है, ये दोनों चित्र एक ही स्थान पर है, एक ही जगह है, पर दूसरे चित्र में हमें अंतर ये दिखाई देता है कि दूसरे चित्र में एक घटना घटित हुई। वो घटना ये है कि एक साइकिल वाला पंप से साइकिल के टायर में जो हवा भरता है, और हवा भरता है कि हवा इतनी ज्यादा भर देता है क्योंकि वह टायर फट जाता है और यहाँ पर एकदम बड़ा धमाका होता है, अर्थात मोटो अवाज થાય છે। સ્વાભાવિક છે, આપણે બેઠા હોય અને આજુબાજુ વાળો કોઈ મોટો અવાજ થાય, પ્રસન્ન ધડાકો થાય તો શું થાય? બધી જ વસ્તુ છે એ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય, એ વિખરાઈ જાય અને આ પ્રકારે ગભરાટ થઈ જાય, એ પ્રકારની ઘટના છે એ ઘટિત થાય છે। એટલા માટે એક એક વસ્તુ ચિત્રના આધારે મિત્રો સૂક્ષ્મતાથી તમે જોજો કે જેની અંદર તમને તમામ વસ્તુની અંદર એ આને કોઈને કોઈ પ્રકારે આપણને એ આખું વિખરાયેલું દ્રશ્ય જોવા મળે છે। એટલે એમાંથી આપણે સૂક્ષ્મ મૂલ્યાંકન કરીને એક એક બાબતને સમજવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે મિત્રો, સરળતાથી તમે, કારણ કે ચિત્રના આધારે છે એટલે તમે ચિત્રના આધારે સરળતાથી જોતા જોતા તમારી જાતે તમે આ વસ્તુને સારી રીતે શીખી શકશો। ત્યાર પછી આગળ હવે સ્વાધ્યાય ઉપર આપણે જઈએ મિત્રો। તો સ્વાધ્યાયની અંદર पहलो प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। હવે आप लोगों ने चित्र का अभ्यास किया, यानी कि चित्र का अवलोकन किया। तो ये चित्र के अवलोकन के बाद आपको उनका एक एक प्रश्न का जवाब देना है। तो पहले चित्र में पहले प्रश्न ऐसा है कि रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न कौन सा है? स्वाध्याय के अंदर स्वाध्याय के अंदर जो पहलो प्रश्न है એનો આપણે આ રીતે કે અહીંયા रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि रबर से गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से जो लिखा हुआ मिटा सकते हैं, जिसे हम इरेजर करते हैं, रबर, ये सभी चीजें हमें रबर से बनी हुई दिखाई देती है, यानी कि नजर आती है। फिर दूसरा सवाल है, टायर फटने से पहले क्यों हो रहा था? तो हम पहले चित्र में देखते हैं टायर फटने से पहले क्यों हो रहा था। तो हमने आगे इसके पहले चित्र में देख लिया कि टायर फटने से पहले एक दुकान वाला आदमी जो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था, एक गुब्बारे वाला था जो गुब्बारे बेचने जा रहा था, एक सब्जी वाली जो सब्जी बेचने जा रही थी, और एक तोता खंभे के ऊपर यानी कि डंडे के ऊपर बैठा हुआ है। ये सभी जो दृश्य है, सभी जो चित्र है, हमें टायर फटने से पहले की जो क्रिया है उसके बारे में के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद टायर क्यों फटा, तो हम कह सकते हैं
टायर पुराना था, એટલે કે टायर जूनू છે कि टायर पुराना था और उसमें अधिक हवा भर दी गई थी। टायर पुराना था, उसमें अधिक हवा भर दी गई थी, इसलिए टायर फटा। फिर चौथा और अंतिम प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। हम देख सकते हैं पूरे के पूरे जो ऊपर के चित्र में हमने उसका वर्णन किया कि टायर फाटवाથી જે ઘટનાઓ ઘટી થઈ તો ટાયર ફાટવાથી કઈ કઈ વસ્તુ થાય જેની અંદર આપણે બધું અસ્તવ્યસ્ત અથવા તો વિખરાયેલું જે જોઈએ છે એ બધી વસ્તુ આપણે આ રીતે ટાયર ફાટવાથી શું શું મિત્રો આ રીતે તમે સ્વમૂલ્યાંકન રીતે પ્રશ્નના જવાબ વ્યવસ્થિત રીતે તમે પણ આ પાઠને આધારે આ વિડિયો લેક્ચરને આધારે લખી શકશો। પણ સાથે સાથે મિત્રો અહીંયા જે આપણો પહેલો પાઠ છે અથવા તો પહેલું ચેપ્ટર છે એને આપણે અહીંયા એ પૂર્ણ કરીએ, પણ એ પહેલા કે અહીંયા જે પહેલા પાઠનું જે સ્વાધ્યાયનું આખું જે સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના જે કાંઈ પ્રશ્નો જરૂરી છે એને હું આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે પીડીએફ ફાઇલની અંદર હું સાથે એ વિડિયો લેક્ચરની સાથે મૂકીશ, જે તમારે પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે એ સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। પણ ક્યું કે હું તમને જે પીડીએફ ફાઇલ એની સાથે મોકલીને આપીશ એ, પણ એ સિવાયનો મિત્રો આપણે જે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો એ અંતર્ગત એ સિવાયનું પેજ નંબર 3 ઉપર આપણને ખ્યાલ છે થોડુંક આપણને અહીંયા હોમવર્ક સ્વરૂપે, તો અહીંયા મિત્રો જો તમને થોડું હોમવર્ક આપું છું જે સાઇટની અંદર હું અહીંયા લખું છું કે જે તમારે હોમવર્ક છે એ રફ બુકની અંદર તો એ હોમવર્ક સ્વરૂપે રફ બુકની અંદર લખવાનું છે। તો એ હોમવર્ક ક્યું છે આપણે નોંધી લઈએ કે ભાઈ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જોઈએ પાના નંબર 3 લખી આપણે પાઠ્યપુસ્તક પાના નંબર 3 ઉપર આપણને પ્રશ્ન બીજો આપેલો છે, प्रश्न नंबर 2 આપેલો છે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। એટલે કે પેરેગ્રાફ તમારે વાંચી અને સુલેખન એટલે સુંદર અક્ષર સારા અક્ષરે તમારે આ પેરેગ્રાફને રફ બુકની અંદર લખવાનો છે, કારણ કે આપણે અક્ષર સુધારવા માટેની જે પ્રેક્ટિસ એ આના આધારે થશે। એટલે અહીંયા આપણને 5 લીટીનો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो मित्रों आ होमवर्क का स्वरूपे रफ बुकनी अंदर पाठ्यपुस्तक पाना नंबर 3 ઉપરનો જે આપણને પ્રશ્ન નંબર 2 છે તેનો એ સુલેખન સ્વરૂપે એને સુંદર રીતે લખવાનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3 છે એને આપણે ચિત્રો છે એ પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર પણ આપણે જે આ બે ચિત્રનો જે અભ્યાસ કર્યો એ જ રીતે એક ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રની અંદર શું અંતર છે એ અંતરને આપણે ગોળ વર્તુળ કરીને રાઉન્ડ કરીને બતાવવાનું છે। ચિત્રો કો દેખકર क्या सॉरी चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है। अंतर એટલે તફાવત શું ફેરફાર છે ઢૂંઢकर बताइए। આ રીતે આપણને જે બે ચિત્રો આપ્યા છે બે ચિત્રની જે અંતર દેખાય એ અંતરમાં તો શું કરવાનું છે આપણે અંતરમાં રાઉન્ડ કરવાનું છે તો ગોળ વર્તુળ કરવાનું છે, વર્તુળ કરવું।
વર્કબુકની અંદર લખીશું, અક્ષર સુધારશું, સુલેખન કરશું. બાકીનું જે આપણે આખો પાઠ સમજ્યા એના જે જરૂરી પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રશ્નોને હું PDF ને તમને વિડિયો લેક્ચરની સાથે મોકલીશ કે પાકી બુકની અંદર આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે લખી અને તૈયાર કરી લેવાનું રહેશે. હવે ફરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આના પછીના બીજા ચેપ્ટરની અંદર મળશું. થેન્ક યુ.